Okay, we were talking about factor intensity, factor abundance, and the shape of production possibility frontier. Factor intensity was defined as if the capital to labor ratio required in the production of Y is more than the capital to labor ratio required in the production of X, then we will say that commodity Y is capital intensive. ये डायग्राम हमने कल की थी. Factor abundance means if total amount of capital divided by total amount of labor in a nation is more than the total amount of capital divided by total amount of labor in other nation, then we will say that the first nation is capital abundant. इन दोनों इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए अगर हम इन्हें इकट्ठा करें तो फैक्टर इंटेंसिटी में हमने अज्यूम किया कि एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड नेशन वन हैज labor in abundance. So we concluded that nation 1 can produce commodity X cheaply. So shape of its production possibility frontier will be like this. It is a flatter. It has a long intersect along the x-axis. If nation 1 produce 0 units of X, it can produce only 70 units of Y. But if it produce 0 unit of Y, it may produce 140 units of X. So the shape of these production possibility frontiers of two nations shows that which nation is capital abundant and which nation is labor abundant. एक बच्चा अली हसन है. बच्चे आपने हैंड रेज किया हुआ कब से, आप कुछ पूछना चाहते हो? सी यार, ये बच्चे बार बार जो हैंड रेज कर रहे हैं, अगर ये आपको शो हो रहे हैं जैसे ये राना हमजा, यहाँ अगर मैं बोलूंगी तो आप इन सबके ना नेम जरा नोट कर लें. मैं एंड में इन सबसे यहाँ क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे और या फिर बल्कि आप अभी मुझे चैट में पोस्ट करें कि राना हमजा का रोल नंबर क्या है, अगर ये बच्चा हमारी ही क्लास का है तो. So today we are going to start HO theorem. According to HO theorem, a nation will produce and export the commodity which requires this abundant at cheaper factor intensively. क्योंकि वो commodity वो nation cheaply produce कर सकती है, so it will import the commodity whose production requires the intensive use of nation's relatively scarce and expensive factor. ये आपने तो मैंने कल दिखाई थी कि अगर लेबर अबंडेंटली है नेशन 1 के पास और एक्स इज लेबर इंटेंसिव है तो नेशन 1 will produce x more quantity of x and it will export it and it will import the commodity y from the other nation. सीआर कल हमने एचओ थ्योरम वाला कहाँ तक कर ली थी? जी मैम. कल मेरी इवनिंग के साथ भी क्लास थी तो मैं भूल गई कि एचओ थ्योरम की डायग्राम कल हमने की थी या नहीं की थी. जी मैम की थी. चलो इसको रिवाइज करके हम आगे शुरू करते हैं. यस मैम. ये थी जनरल फ्रेमवर्क. इसमें हमने ये कि commodity prices जो सी हैं, they are depend on the factor prices and the technology. Factor prices will depend on supply of factor and drive demand of factor of production, while drive demand for the factor of production will depend on demand for final commodity, and demand for final commodity will be ultimately depend on the taste and on the distribution of income or distribution of ownership of the factor of production. ये जनरल फ्रेमवर्क है. जनरल फ्रेमवर्क के बाद हमने डायग्राम करनी थी जिसको हमने दोबारा अपने assumptions जो से वो हमने किए थे.
Since the two nations have equal taste, they face the same indifference curve. Tastes are same in both nations. Indifference curve I is the highest indifference curve of nation 1 and nation 2 can reach in the isolation. Isolation mean autarky. Isolation or autarky mean the point where there is no trade, both nations are producing and consuming by themselves. The tangency of indifference curve I at point A and A dash defines the no trade equal relative commodity prices of PA in nation 1 and PA dash in nation 2. Since PA is less than PA dash, nation 1 has a comparative advantage in X and nation 2 has comparative advantage in Y. Once again आप इस माइंड अपने माइंड में क्लियर करें कि हमने कहाँ से बात शुरू करनी है कि ट्रेड का पैटर्न कैसे डिसाइड होगा कि प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइसेस क्या हैं. जिस नेशन में रिलेटिवली जो कमोडिटी चीपर होगी उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी होगी. एचओ थ्योरम और कंपैरेटिव एडवांटेज में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एचओ थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन फैक्टर एंडोमेंट्स और फैक्टर अबंडेंस. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जो शेप है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी कम्युनिटी कौन सी नेशन चीपली प्रोड्यूस कर रही है. इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पैनल है इस डायग्राम का, इट एक्सप्लेन्स द सिचुएशन व्हेन बोथ नेशन आर नॉट डूइंग एनी ट्रेड. इन दिस सिचुएशन दे कैन रीच द ओनली कर्व आई. ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है. इट इज द highest curve which both nations can reach in isolation. In isolation, nation 1 is at equilibrium at A and nation 2 is at equilibrium at A dash. The point of tangency make a slope which is shown by PA dash for the nation 2 and PA by nation for nation 1. The slope of PA dash is more than PA. PA dash is equal to PX over PY and its slope shows the ratio of price of X to the price of Y. It is higher for the nation 2 and it is lower for the nation 1, which shows that nation 1 can produce X cheaply and nation 2 has Y relatively cheaper. Keeping in mind this background, these both nations starts doing trade with one each other. Nation 1 will export X and nation 2 will export Y. But before exporting, they will increase the production of the commodity which they want to export. So to increase the production of the commodity, nation 1 will move from point A to B in the production. From moving point A where it was producing only 100 units of X, now it moving to the 130 units of X. And it will export the extra quantity of X which it does not require. Same for nation 2, it will move from point A dash to B dash and it will produce more amount of commodity Y and it will export the extra amount of Y which it does not require at home. After starting producing at B and B dash, both nations will stop here and will not go for the further specialization. Complete specialization, if you want to show here complete specialization, then nation 2 should produce at this point and with 0 unit of X, and nation 1 should produce at this point at X-axis with 0 unit of Y. But we assume that in the case of increasing opportunity cost, both nations will do incomplete specialization. They will produce some quantity of good at home also. इसमें ऐसे ही है जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका बेशक बहुत सी अमाउंट में कार जो सी है वो इंपोर्ट करता है जापान से, लेकिन फिर भी अमेरिका खुद भी कारें प्रोड्यूस करता है. तो इसी तरह इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन के बाद नाउ दे स्टार्ट ट्रेड एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू सी यानी 130 माइनस यहाँ पे अगर 90 है अमाउंट ऑफ एक्स इज एक्सपोर्टेड बाय नेशन 1 and it is consumed by nation 2, and by consuming this amount of X, this nation can consume at point E. Now point B dash to C dash, this amount of the commodity Y will be exported by nation 2 and it will be consumed by nation 1, and now nation 1 can consume here at point E. E is equal to E dash, and now both nations are consuming at higher community indifference curve. So with the opening of trade with given factor endowment, both nations are better off than autarky. In isolation, these nations could not reach this point
they can reach this higher point of equilibrium only with the help of trade. इरफान, आपकी वीडियो ओपन है। उसके कोई भी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी रिक्वायर्ड होती है या हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं उस सब को हम ये कहते हैं कि हमारे टूल्स हैं किसी भी चीज को इकोनॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। और डेफिनेशन वाइज अब हमने इसको कर लिया हुआ है। इसमें से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एचओ थ्योरम के दो पार्ट हैं, एक है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम और फर्स्ट पार्ट वो है एचओ थ्योरम का जो कि हम पहले कर चुके हैं। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी हम अभी करेंगे और उसके बाद बीच में हम थोड़ा सा गैप लेके अगली क्लास शुरू करेंगे। अब आप इसमें हमने पढ़ा कि ट्रेड शुरू तब होगी जब किसी नेशन का कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज कब होगा? जब एक नेशन कोई कमोडिटी चीपली प्रोड्यूस कर सके। कोई नेशन कोई कमोडिटी चीपली कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? जब उसके पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंस में हो जो उस चीज की प्रोडक्शन में इंटेंसिवली यूज होता हो। ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद हमने एचओ थ्योरम को एक्सप्लेन किया कि नेशंस जो सी हैं उनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किस चीज पे डिपेंड करती हैं, उनकी फैक्टर एंडोमेंट पे। इस सब के बाद ये कि जब एक ट्रेड स्टार्ट हो गई दो नेशंस के दरमियान तो सैमुअलसन ने ये अंडरस्टैंड किया कि ट्रेड स्टार्ट होने के बाद होना ये चाहिए कि एक नेशन में लेबर चीपर है, लेबर को यूज करके वो एक्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लेबर की डिमांड बढ़नी चाहिए। लेबर की डिमांड बढ़ने से लेबर की प्राइस जो सी है वो बढ़नी चाहिए। और दूसरी नेशन जो कि अब एक्स पहले से कम प्रोड्यूस कर रही है और वहाँ लेबर एक्सपेंसिव था, महंगा था, वहां पे अब वो वाई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से अब उस नेशन के लिए लेबर को चीपर हो जाना चाहिए। तो जब वो नेशन जिसमें लेबर पहले सस्ता था महंगा होना शुरू हो जाए और वो नेशन जिसमें लेबर पहले महंगा था सस्ता होना शुरू हो जाए तो ट्रेड वहां पे इक्विलिब्रियम में होगी जहां दोनों नेशंस में उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बराबर नहीं हो जाती। और इसी चीज को हम कहते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ये एक पार्ट है और एक और रिजल्ट जो हमने अंडरस्टैंड करना है। एक तो हमने ये बात समझनी है कि ट्रेड ओपन होने के बाद दोनों नेशंस, जो हमारे एजम्पशन में दो ही नेशंस है, वरना होना ये चाहिए कि जितनी भी नेशंस ट्रेड कर रही हैं उनमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मसलन लेबर की वेजेस या कैपिटल का रेंट आपस में बराबर हो जाना चाहिए। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि कोई एक नेशन जो ट्रेड कर रही है जिसमें लेबर पहले सस्ता था और कैपिटल महंगा था, जो ट्रेड ओपन होने के बाद उसमें लेबर महंगा होना शुरू हो जाएगा और कैपिटल सस्ता होना शुरू हो जाएगा, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से चेंज होगी कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज में यूज होता है
उसकी कीमत बढ़ेगी, और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इंपोर्टेड कमोडिटीज में यूज हो रहा है उसकी डिमांड और कीमत कम होगी। इसको हम कहेंगे इफेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन से। According to factor price equalization theorem, international trade will bring about equalization. Equalization means bribery in the relative and absolute returns to homogeneous factors across the nation. Homogeneous factor से क्या मुराद है कि वो लेबर जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम हो या वो कैपिटल, क्योंकि इसमें आप ये नहीं कर सकते कि एक कंट्री की लेबर बहुत ज्यादा स्किल्ड और दूसरे कंट्री की लेबर बिल्कुल इलिटरेट हो, उनके पास कोई स्किल ना हो, तो आप ये कहें कि उनकी वेजेस भी बराबर हो जाएगी, उनकी वेजेस बराबर नहीं होंगी। In short, wages and other factor returns will be same after specialization and trade has occurred. जब जितनी ट्रेड के बैलेंस होने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, जब उतनी स्पेशलाइजेशन हो चुकेगी, ट्रेड बैलेंस हो चुकेगी, then wages and the other factor returns will be same. This theorem will hold only if HO theorem holds. फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये वही कंटिन्यू है। इंटरनेशनल ट्रेड विल causes W to rise in nation 1 which was the low wage nation, and it will cause to fall the wage in nation 2 which was the high wage nation, reducing the free trade differences in wages between two nations. Similarly, trade causes R to fall in nation 1 and the capital expensive nation and will rise in nation 2 which was before trade capital was cheaper in nation 2, reducing the free trade difference in R means rent of capital in between nations. अहमद जायद, बच्चे आप को कोई बहुत जरूरी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख के पोस्ट करें, अदरवाइज आप वेट करें, नहीं तो बल्कि दोनों क्लासेस के दरमियान कम से कम मैं आधे घंटे का गैप लूंगी। उस दौरान आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लिख के रखें तो वो ज्यादा बेटर होगा। सिमिलरली ट्रेड ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड काजेज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन द नेशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन द नेशन कैसे होगी कि रिलेटिव एक्सपेंसिव या स्केर्स फैक्टर जो है उसकी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी और अबंडेंट फैक्टर की प्राइसेस बढ़ना शुरू होगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को और इसके अलावा इसमें आगे इस चैप्टर में हमारा रह गया एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग, एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ एचो थ्योरम्स। इस डायग्राम को आपने अभी देखना है। नेक्स्ट क्लास जो सी है उसको हम पूरे 11 बजे दोबारा शुरू कर लेंगे। इसमें से अब जो बच्चे बार बार क्वेश्चंस के लिए हाथ उठा रहे थे वो अपने नाम और रोल नंबर अगर लिख दें या अपना क्वेश्चन ही लिख दें। मैम आई हैव ए क्यूरी। अहमद जायद, हाँ जी अहमद, रोल नंबर 9848। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा बेसिक सा है कि एचओ थ्योरम की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। एचओ थ्योरम की हमें सिर्फ ये जरूरत पड़ी कि जब हम पढ़ते हैं ना कंपैरेटिव एडवांटेज, जी तो वो एक्सप्लेन करता है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट तो चलो वो बता देता है, और साथ ही वो ये अज्यूम करता है, अगर उसकी अजम्पशंस आप खोल के देखें, इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जमाने में ये थी कि किसी भी चीज की वैल्यू इस चीज से डिसाइड होगी कि उसकी प्रोडक्शन के लिए हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड। लेकिन जाहिर है कि जो मॉडर्नाइजेशन आई थी ये बात समझ में आई कि जाहिर है कि लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब मशीन कैपिटल टेक्नोलॉजी आए तो इन्होंने से फर्क पड़ने लग गया कि चीजों की कीमतें लेबर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि और बहुत से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को जब डिस्कार्ड किया गया तो उसको दोबारा उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को कि जिसको हमने पढ़ा भी था अपॉर्चुनिटी कास्ट पे, कि हम ये कंसीडर, शुरू में मैंने आपको बताया था जब हमने उस दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते थे, क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए इतने घंटे लेबर के उनके लगे, इतने घंटे उनके, हम और कोई बात नहीं करते थे। जब ये डिसाइड हुआ कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू डिस्कार्डेड है, इसको आइंदा से आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो बेसिक लॉ है जो कि बिल्कुल करेक्ट था, इसको डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि प्राइस ऑफ या कास्ट ऑफ एक्स विल बी द यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी ऑफ वाई विच वी हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस additional unit of x.
कि एक्स की कीमत हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्स का एक नया यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वाई के हमें जितने यूनिट छोड़ने पड़ेंगे वो एक्स की अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। इस तरह करके उन्होंने लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लेन कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वंस अगेन जब न्यू थ्योरीज आती हैं तो आगे जब जब रिसर्च होती है उस पर क्वेश्चन उठते रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि कंपैरेटिव एडवांटेज ट्रेड का पैटर्न तो बता देता है, लेकिन लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये नहीं बताता कि क्यों एक नेशन मोर एफिशिएंट है देन द अदर नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी। इसका आंसर एचओ थ्योरम ने दिया कि पहले उस वक्त चूंकि एग्रीकल्चरल गुड्स ज्यादा थी कि किसी कंट्री का जो है वो एनवायरनमेंट किसी फसल के लिए अच्छा है, कुछ कंट्रीज में कोई चीजें बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं होती थी। फैक्टर अबंडेंस है, ये फैक्टर एंडोमेंट है जो डिसाइड करेगी पहले कि कौन सा नेशन किस चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगा, फिर वो वही चीज एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर आप देखें डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में, तो डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादातर एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट ज्यादातर वही गुड्स होती हैं, इनके पास जरखेज जमीनें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये के साथ कैपिटल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रेड का पैटर्न जो सा वो डिसाइड इसी बेस पे होता है। तो एचओ थ्योरम की जस्ट ये जरूरत है कि वो ये एक्सप्लेन करती है कि कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कि ट्रेड का पैटर्न कैसे डिसाइड होगा। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द फैक्टर एंडोमेंट, और फैक्टर एंडोमेंट जो है उसको हम डिसाइड करेंगे फैक्टर अबंडेंस से। और फिर ये कि जो कमोडिटी आपका सस्ता अबंडेंट फैक्टर एक्सटेंसिवली यूज करती है वो एक्सपोर्ट करेंगे। ईरान में लेबर चीपर है और वहाँ पे हाथों के बने हुए कालीन एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में के चावल है। इसी तरह मसला एक फैक्टर बढ़ना सुनी बात है, चाइना की हर तरह की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन जो हलाल गोश्त इस्लामिक कंट्रीज को जाता है वो पाकिस्तान का ज्यादा जाता है, क्योंकि चाइना वाले कहेंगे भी तो उनके पास ये फैक्टर नहीं है कि वो कहें कि जी हमने जी हलाल करके भेजे। तो वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो समझे कि उनके पास अवेलेबल नहीं है एक तरह से। इसी तरह सी फूड है। सी फूड पाकिस्तान के पास बहुत है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ रॉ सी फूड जो उनसे है या सी जो भी वो होते हैं एनिमल्स वो चाइना को देता है। चाइना उनको टेक्नोलॉजी यूज करके कैपिटल यूज करके उनको सेव करके उनको टिन पैकिंग करके और वो बाकी कंट्रीज को भेज देता है। तो उस चीज में क्या चीज आ जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है कि हम उसको उस तरह से भेज सकें, इसलिए हम रॉ फिश उधर भेजते हैं, वो उसमें वैल्यू एडिशन करके आगे भेज देते हैं। और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन? ठीक ठीक। अच्छा मैम, हेलो। हाँ जी। जी मैम, जब आप लेक्चर दे रही हो तो काइंडली इसको उर्दू में रखा करें हमें, क्योंकि एक तो ये सब्जेक्ट ही काफी टफ है, तो हमें समझने में जरा आसानी रहती है। मैं तो इसे तकरीबन सारा उर्दू में ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ बच्चों की यूनिवर्सिटी में ये भी शिकायत आई है कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो हमें पढ़ाया उर्दू में जाता है, तो मैं तो मिक्स करके पढ़ाती हूँ इंग्लिश भी और उर्दू भी। तो बाकी फिर भी आप ये कोशिश किया करें, मैंने आपको स्लाइड्स का भी लिंक दे दिया है और इसीलिए मैंने ऐसे चैप्टर से शुरू किया जो हम पहले कर चुके थे। तो आप जी जी। लोग वो पहले रिवीजन हुई हुई थी, तो आप लोग ऐसा किया करें किताब से थोड़ा थोड़ा देखा करें। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा बंदे को क्लियर हो जाता है, जो बात समझ ना आए वो इसी तरह एंड पे पूछ लिया करें। बाकी पहले बुक से पढ़ना है, उसके बाद इन स्लाइड्स को अच्छी तरह देख लीजिएगा, श्योर फिर हमें पेपर पैटर्न जो ही पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। श्योर। चलें मैम, चलो थैंक बच्चों, यू। 11 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो बच्चे सी आर आप मुझे इस क्लास की अटेंडेंस अलग भेजनी है, उसकी अलग। इसमें इस वक्त 30 बच्चे हैं, कुछ बच्चों को मैंने रिमूव कर दिया जो बार बार शरारतें कर रहे थे। इन 30 बच्चों की अटेंडेंस आपने मुझे भेजनी है।